नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो वी हैव स्टडीड अप टू रूल 8। अप टू रूल 8 order 7 we have studied what particulars a plaint should contain, or what particulars should be given by the plaintiff in a plaint. And you should remember as per the marginal notes or as per the details I have narrated to you in the earlier class. Now we are going to study rule 9 onwards, and I am again telling you rule 9. We in every case, whether you are studying orders or your sections, you must be aware that for which stage of the exam, that is prelims, mains or interview, this is important. So if you know that, your half job is done. आधा काम आपका तभी हो गया जैसे आपको ये पता चला कि ये जो रूल है या ऑर्डर है या सेक्शन है, इसको हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है या मेंस के लिए पढ़ना है। तो रूल 9 इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स, hardly important for your mains, but only and only 99.99% you will see the question in prelims. And कहाँ से question आएगा, I tell you. Please see this. What is the heading? Procedure on admitting a plaint. Now a plaint has been filed. Then what is the procedure? Immediate procedure to be followed by the court. Now I read you the direct language. Where the court orders that summons be served. Summons सर्व होने चाहिए. This is the now the court has admitted. It means what? The court has admitted your plaint. It means what? Neither plaint is returned nor it is rejected now. So what should be? Where the court orders that summons be served on the defendants in the manner provided in Rule 9 of Order 5, then it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint. Please, this is important. To present as many copies of the plaint on the plain paper as there are defendants within 7 days. So please highlight this, within 7 days from that date, from the date of such order, along with requisite fee for service of summons on the defendants. So I read you the language of the Bail Act. Now questions will come from here. See, suppose कीजिए I am the plaintiff and you all are defendants. Supposedly out of them you 5 are defendants. Then court will direct to me that as many copies of the plaint as there are defendant. If defendants are 5, it means 5 copies of plaint. The plaintiff will be directed to present 5 copies of the plaint. समझ में आता ही नहीं? प्लेंट की 5 copies. Why? Each copy will be delivered to the
defendant so that defendant may read it, defendant may think of its defense or what should be his written statement. So therefore as many copies as the number of defendants. You will see the question of prelims from here, and then time specified is what, within 7 days. तो कितने दिनों के अंदर उसको प्रोड्यूस करनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, विद इन 7 डेज. अब ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, विद इन 7 डेज, विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज, विद इन 14 डेज, विद इन 30 डेज, एंड देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉपीज विल बी गिवन, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स. नंबर 2, इन हाउ मेनी डेज, विद इन 7 डेज, एंड व्हाट अदर थिंग्स आर टू बी गिवन along with requisite fees for the service of summons. अब उनके पास जो जाएगा 5 डिफेंडेंट्स हैं, 5 डिफेंडेंट्स को कैसे पहुंचाएंगे, सम्मन जाएगा उन पर. देन हु विल बियर द फीस ऑफ सम्मन्स, एज ए प्लेंटिफ यू विल हैव टू बियर द सम्मन्स. तो देयरफॉर यू विल हैव टू प्रोवाइड दीज कॉपीज ऑफ प्लेंट along with requisite fee for service of summons on the defendant. Now this is what, rule 9, and don't forget its importance because we are going to study in, please see this, this is rule 11 as well along with this. Rule 11, you see F, if you see the rule 11F, if the plaintiff fails to comply with this, his plaint will be rejected. So consequence of non compliance of 9 will be what, rejection. देखिए जब भी आप पढ़ेंगे ना सीपीसी को, सीपीसी हो या सीआरपीसी हो, जो प्रोसीजर एक्ट है उसमें आप एक ट्रिक फॉलो कीजिए हमेशा, कि ट्रिक ये है कि प्रोसीजर, दीज प्रोसीजर लॉज आर गिविंग यू सर्टेन प्रोसीजर टू बी फॉलोड, एंड इफ दे आर प्रोवाइडिंग ए प्रोसीजर देन इट्स वायलेशन इज ऑल्सो इनएविटेबल. Definitely there will be intentional or unintentional, there may be the cases of violation or non-compliance of the procedure. Then what would be the consequence as well? Procedure, consequence of non-compliance. Section 9 में क्या हुआ, plaintiff is directed to provide what, copies and the requisite fees. This is the duty of the plaintiff now, to provide as many copies of the plaint as the number of defendant. Second thing is to be provided is what, court fees, process fees. Now ये हो गया प्रोसीजर, कि आपको कॉपीज देनी है प्लेंट की और आपको फीस देनी है सम्मन्स के प्रोसेस को जारी कराने के लिए. तो ये प्रोसेस बताया आपको किसने, सीपीसी ने. अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर आपने नहीं दी, यानी कि आपने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तब क्या होगा, ये तब क्या होगा, ये जिज्ञासा आपके मन में हमेशा होनी चाहिए. मैं आपसे ये कह रहा हूं, जहां भी कोई प्रोसीजर दे रखा है, तो अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, वो डायरेक्शन फॉलो नहीं होती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस याद रखिए आप लोग, और उसकी रेमेडी याद रखिए आप. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. उसकी रेमेडी क्या होगी, यू कैन गो इवन टू द अपील और यू कैन फाइल द फ्रेश प्लेंट. तो 3 बातें कनेक्टेड हो गई आपकी. ये अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे, आप रिक्वायरमेंट क्या थी 9 की, प्लेंट की कॉपी, सम्मन सर्विस की फीस. नॉन कंप्लायंस में क्या हुआ, 11F में प्लेंट होगी रिजेक्ट होगी, तो फिर क्या करूंगा, फिर 2 रास्ते मिलेंगे आपको, पढ़ेंगे हम लोग अभी. 2 रास्ते में क्या होगा, एक तो क्योंकि डीम्ड डिग्री है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, आप अपील में चले जाइए, या फिर आप फ्रेश प्लेंट फाइल कर दीजिए आफ्टर कंप्लायंस ऑफ ऑल द प्रोसीजर. तो 3 बातें कनेक्ट हो गई, नहीं हो गई. इस तरीके से आप सीपीसी में खासकर आप हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए आप लोगों को. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो, है ना. नाउ प्लीज सी दिस, द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर सीपीसी डील्स विद द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट. रूल 9, वेयर कोर्ट ऑर्डर्स दैट सम्मन्स बी सर्व्ड, है ना, it will direct plaintiff to present as many copies within the time 7 days. तो within 7 days जो है, you will get the question in prelims. Now come to this. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.